Hello students, I am Dr. Roma from BDS Institute of English. This is a very good news. ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਆ ਗਿਆ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਗਿਵਿੰਗ ਯੂ ਆਲ ਦ ਲਿੰਕਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਟੂ ਬਾਈ ਦੈਟ ਕੋਰਸ। ਉਹ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਓ ਟੁਡੇ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਦ ਟਿਪਸ ਆਫ ਸਪੀਕਿੰਗ। Speaking tips is something which every student wants. हर बच्चे का दिल करता है कि मेरे को ਇਹੋ ਜਿਹੇ tips आ जान कि मैं आराम दे नाल पेपर clear कर जा। But what I believe is कि tips are not only the tips. Tips means that there is a very important information which needs to be implemented. एक ਇਹੋ ਜਿਹੀ information है जिन्हों तुसी implement करना चाहते हो। और speaking बच्चे बहुत डर जाते हैं, सुन के डर जाते हैं कि वो some person is going to speak English, अगर मैंने समझ ना आई तो मैं की करांगा। ये जिहड़ी confusion है की करना है और की नहीं करना, this is something which gives him a very high level of nervousness। और मैं थोड़ी ये nervousness नूं ही control करन लगी कुछ एक tips तुहाडे नाल share करने हैं। सब तो पहला है कि बच्चा सोचता है मैं की बोला, उन्हें कुछ खास नहीं बोलना, उन्हें वही बोलना है जो उन्होंने पूछा है। Whatever the examiner is asking, just reply that. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜੀਕੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਆਸਕ ਯੂ ਸਮਥਿੰਗ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਐਂਡ ਬਿਲੀਵ ਮੀ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਬੋਲਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ। ਨਾਓ ਦ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ the examiner cares about how you answer. What you say is only important in regards to it being relevant to the topic. कि topic ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ relevant ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ question examiner ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, does it make any sense what you are answering? कि ਜੋ ਤੁਸੀਂ answer ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ क्या ਉਹਦੀ ਕੋਈ sense ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੇ ਉਹਦੀ sense question ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ then there is nothing to worry। ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ answer ਦੇਣਾ ਜੋ question ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ। अगर वो पूछ रहे डू यू लाइक टू गो फॉर पिकनिक्स, डू यू लाइक टू सेलिब्रेट योर बर्थडे, व्हेन वाज योर बर्थडे? यस सर, आई लाइक टू सेलिब्रेट माय बर्थडे एंड माय बर्थडे वाज, आई सेलिब्रेटेड विद माय फैमिली फ्रेंड्स, एनीथिंग यू कैन टॉक अबाउट। अब बर्थडे के क्वेश्चन में आप बोलो आई एम फाइन, तो इट विल मेक नो सेंस। दिस इज समथिंग यू हैव टू कीप इट इनटू माइंड। सिर्फ यही चीज़ तुसी दिमाग 'ਚ रखनी है कि तुसी वही बोलना है जो वो तुहानू पूछ रहा है। तुसी उहदे तो हट के कुछ नहीं बोलना। और उन्होंने बोलन लगिया तो क्वेश्चन को दिमाग 'ਚ रख के सिर्फ एक चीज़ दिमाग 'ਚ रखनी है कि मैं इंग्लिश के विच कॉन्वरसेशन कर रहा, मेरी स्पीकिंग नहीं हो रही, मेरी कॉन्वरसेशन हो रही है, किसी के नाल मेरी गलबात हो रही है। मैं उन्होंने कुछ सुनाना नहीं है, उन्हें मेरे को कुछ सुनना नहीं है। वी आर जस्ट हियर टू हैव अ कॉन्वरसेशन। जो ये चीज़ तुहाडे माइंड दे विच आ जाएगी देन यू विल नॉट फाइंड डिफिकल्टी इन स्पीकिंग। Then the second tip which comes is mimic native speaker। mimic होता है कॉपी करना। मैं नहीं कहती तुसी नेटिव स्पीकर की नकल उतार के उहदे वक्न इंग्लिश बोलने की कोशिश करो और तुहाडे कोलों ना प्रोनाउंसिएशन निकले और ना ही तुसी उहनूं स्पीड नूं पकड़ पाओ। What you do is you try to listen, ऑडियो सुनो नेटिव स्पीकर्स दियां, उन्हां दी प्रोनाउंसिएशन इस हद तक सुनो कि ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਆਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ ਇਟ ਕਾਜ਼ਸ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਸਪੋਕਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਲਿਸਨਿੰਗਸ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਸਨਿੰਗਸ ਹੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਨਿੰਗਸ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ। This is the second step, second tip, what you have to keep it into mind. Then the third part comes punctuation. आपने सुना होगा कि राइटिंग में punctuations लगानी चाहिए, comma, full stop, exclamation, interrogative, इन्हां सारियां दी बड़ी इंपॉर्टेंस है। Basically punctuation हुंदी की है? Punctuation is giving a break in the sentence, putting a stress on the word, किसी भी word दे ऊपर जोर लगाना, किसी word नूं stress देना, किसी वर्ड के उपर तुसी थोड़ी देर रुकते हो, किसी सेंटेंस नूं खत्म होने तो बाद ब्रेक देते हो, और किते तुसी अद्धा रुकते हो अद्धा अगे चलते हो, दैट इज कॉमा। नाउ दीज पंक्चुएशंस दे प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर स्पीकिंग।
क्योंकि ये क्या है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिकेशन। ਇਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਮ ਮੇਰੀ ਸਪੀਡ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਟਾਫਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਾਇਆ। अरे भाई हमने सुनना ही नहीं कुछ भी। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू योर रिसाइटिंग। कोई पोएम कंपटीशन थोड़ी हो रहा है, रेसिटेशन कंपटीशन थोड़ी है कि तुसी पोएम याद की और उत्थे जाके सुनाती। इट इज़ जस्ट अ कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन का मतलब है कि जो तुसी बोल रहे हो अगले दी समझ आ रहे हैं, और अगले दी समझ च कदों आएगा जो तुहाडी स्पीड कंट्रोलेबल होएगी। जो स्पीड च कंट्रोल आ जाएगा, जो तुहाडे कमांड ऑफ द वर्ड्स करेक्ट हो जाएंगे, स्पीड विल बी अंडर कंट्रोल, ऑटोमैटिकली यू विल गेट वेरी गुड स्कोर। दिस इज़ अ रोल ऑफ पंक्चुएशन इन योर स्पीकिंग्स। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ स्पीकिंग्स ਦੇ ਵਿੱਚ पंक्चुएशन ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ इंपॉर्टेंट रोल है। डोंट माइनस इट, ਇਹਨੂੰ माइनस नहीं करना। then comes how to improve your pronunciation. use speech to text कि ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ text कोई भी अपने सामने, I'll be giving you a very simple technique to practice this tip. कोई भी तुसी टेक्स्ट अपने सामने रख लो, एनी क्यू कार्ड, एनी पीस ऑफ राइटिंग इन बोल्ड लेटर्स ले लो, या जी तुहाडे कोल ठीक तरह पढ़ी जाती है, जिहदे च कॉमा फुल स्टॉप सब कुछ है, उन्होंने रीड अलाउड करो, उन्होंने जोर दी पढ़ो। जो तुसी रीड अलाउड करोगे, यू विल लिसन टू योर ओन वॉइस, यू विल रियलाइज दैट यू आर पिकिंग अप अ स्पीड। तुहानूं याद होएगा कि स्कूल दे विच टीचर्स कहंदे सी कम ऑन यू स्टैंड अप एंड यू रीड, कि यह चैप्टर एक चल रहा है, तुसी खड़े हो और पढ़ो। क्लास दे विच एक बच्चा जोर दी पढ़दा सी। हुण जिहड़ा बच्चा जोर दी पढ़दा है, वो बच्चे दा फ्लो अच्छा होंदा है। टीचर हर रोज़ इको बच्चे नूं कहंदे सी कि तू रीड कर, वाई, बिकॉज द फ्लो अच्छा है। बट इत्थे असीं सब ने अपनी स्पीच नूं इंप्रूव करना है। एंड टू इम्प्रूव द स्पीच, आई टेल यू, घर पे बैठ के बड़े आराम से आप कर सकते हो। कोई भी टेक्स्ट लो, उन्होंने जोर दी पढ़न की कोशिश करो, कॉमा फुल स्टॉप्स नूं ध्यान दे के पढ़ो, एंड यू विल नॉट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम्स। नाउ दीज आर द 4 टिप्स दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू। ये 4 टिप्स है जिहड़े मैं डिस्कस किए हैं, एंड आई विश कि सिर्फ टिप्स होके बंद ना हो जाए स्लाइड, दे शुड बी इंप्लीमेंटेड। तुसीं इन्हां नूं एक बारी इंप्लीमेंट करके देखो, यू विल रियलाइज दैट यू आर हैविंग गुड स्पीकिंग, योर नर्वसनेस इज कंट्रोल्ड, कॉन्फिडेंस थोड़े च आ गया है, और थोड़े पॉजेज अपने आप ख़त्म हो गए हैं। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू, एंड आई रियली विश माई स्टूडेंट्स गुड लक, स्टे सेफ, God really bless you, and I hope that you get very good score in speakings. Thank you.